Okay students, let us proceed to find the integral using method of differentiation. Our first type of that integral is written as integration of 1 upon a plus b cos x to the whole square. As we discussed in last lecture, there are 3 steps to find integration of such format of integral. That is 1 upon a plus b cos x to the whole square. इस टाइप के इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए we have 3 steps. Step first is हमें कुछ assume करना पड़ता है. We have to take a is equal to, okay, हमें क्या करना है, let a is equal to sin of x upon a plus b cos of x. In step first, we have to take capital A is equal to cos of x. Sorry, यहाँ पे a plus b cos है, okay? cos का फंक्शन है इन डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में sin x लेना है. This is our first step to find integration of this type of integral. Okay, so a is equal to sin x upon a plus b cos x. Okay. In step 2, we have to find derivative of capital A with respect to x. Okay, let us take the derivative of both sides. That is dA by dx is equal to, okay, u by v, that is a plus b cos of x into cos of x. Derivative of sin x, that is cos of x, minus sin of x into derivative of a plus cos x, that is 0 minus b sin x to the whole upon a plus b cos x to the whole square. Okay, using u by v rule of derivative. This one is equal to a into cos of x plus b into cos square x minus into minus plus b sin square of x whole dividing by a plus b cos x to the whole square. Okay, any problem? And this one is equal to a into a cos of x plus, देखो b cos square x plus b sin square x is equal to 1. Means taking b as a common, we have cos square x plus sin square x is equal to 1. So we get b upon a plus b cos of x to the whole square. So we have dA by dx. Okay, in this way we get dA by dx. So here in step 2, please open the notebook. लास्ट लेक्चर में जो बताया था उसको नोटबुक को ओपन कीजिए. देखिए उसके बाद क्या करना है, हमें a प्लस बी कॉस एक्स को a प्लस, अब इसका पावर 2 है, इंडेक्स 2 है, हमें क्या करना है, we have to express dA by dx in the form of 1 upon a plus b cos x. मतलब उसका इंडेक्स 1 है, हमें उसे ऐसा एक्सप्रेस करना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखो. दिस वन इज इक्वल टू, यहां पे a प्लस बी कॉस एक्स है, तो बट यहां पे a कॉस एक्स है. ओके, तो पहले एक काम कीजिए, इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाइए. यहां पर b कॉस एक्स है, यहां पर a कॉस एक्स है, तो पहले तो a कॉमन निकालिए, तो वी गेट कॉस ऑफ x प्लस b बाई a अपॉन a प्लस b cos of x to the whole square. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b cos x है, यहाँ पर सिंगल, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1. ठीक है, तुमको b चाहिए तो आप क्या करो, b से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड करो, तो दिस वन इज इक्वल टू a by b, that is b cos of x plus b square upon a whole divided by a plus b cos of x to the whole square. ठीक है, बराबर मैं क्यों कर रहा हूं, जिससे एक पावर अभी मालूम चलेगा आपको कि हमें क्या करना है,
इसके पावर को रिड्यूस करना है, इंडेक्स को रिड्यूस करना है बाय 1। हाँ, और देखो b cos x है, यहाँ b cos x है, बट यहाँ पर प्लस a है, तो a की कमी है यहाँ पे, we have to find प्लस a। तो कैसे मिलेगा? a by b into b cos of x plus a माइनस, ओके, प्लस a। क्यों? क्योंकि हमें इसको सेम टू सेम ऐसा ऊपर चाहिए, we have to find a plus b cos x, ओके। तो हमने क्या किया? प्लस a किया, माइनस a किया। यहाँ पर पहले से क्या था? b स्क्वायर अपॉन a था, होल डिवाइडेड बाई a प्लस b cos of x to the whole square, ठीक है। एंड दिस वन इज इक्वल टू a by b। देखो अभी कितना हुआ, इसे क्या लिख सकते हो आप? a प्लस b cos of x ऐसा, और माइनस देखो a इंटू a स्क्वायर। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, ठीक है ना। a इंटू a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, और होल डिवाइडेड बाई a प्लस b cos x टू द होल स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? एंड दिस वन इज इक्वल टू a बाई b इंटू a प्लस b cos of x, a प्लस b cos of x, उसको अभी एलसीएम है, अभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो एक बार इसके साथ आएगा, दैट इज a प्लस b cos of x टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस a बाई, देखो a बाई b दोनों का मल्टीप्लायर है, यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और प्लस a बाई b इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a होल डिवाइडेड बाई a प्लस b cos of x टू द होल स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया, बचा क्या? a बाई b इंटू 1 अपॉन a प्लस b cos of x प्लस, देखो a और a कटेगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b इंटू 1 अपॉन a प्लस b cos of x टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो रहा आपका dA बाई dx, क्लियर हो गया? ओके, एनी डाउट? यहां तक दिया। अब ये तो रहा आपका स्टेप नंबर 2, यहां तक ये आपका स्टेप नंबर 2 है। देखिए यहां पर a प्लस बी कॉस एक्स है, a प्लस बी कॉस एक्स है, जो कि गिवन था। हमें क्या चाहिए? हमें गिवन क्या था? 1 अपॉन, दैट इज 1 अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर dx। देखिए फिर से a यहाँ पे आया है, फिर से यहाँ पे आ चुका है, ओके, मीन्स रिपीटेड इंटीग्रल। अब देखिए हमें यहाँ पे कैपिटल A चाहिए, ये तो रहा स्टेप 2। आपने स्टेप 2 को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन a प्लस b cos x, 1 अपॉन a प्लस b cos x और 1 अपॉन a प्लस b cos x टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में आपने उसको प्रेजेंट किया, ओके। आवर नेक्स्ट स्टेप इज, अगला स्टेप क्या रहेगा? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या मिल गया? कैपिटल A। यहाँ पे क्या मिलेगा? a बाई b इंटू 1 अपॉन a प्लस b cos x dx प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a प्लस b cos x टू द होल स्क्वायर dx, ठीक है। हमें यही तो चाहिए, इसी को इंटीग्रेट करना था, ठीक है। अब एक काम करो, इतना इज इक्वल टू मीन्स देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a प्लस b cos x टू द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इतना इज इक्वल टू क्या होगा? इतना माइनस इतना मीन्स कैपिटल A माइनस इंटीग्रल ऑफ a बाई b को बाहर लिख लीजिए, 1 अपॉन
प्लस बी कॉस ऑफ एक्स dx। ठीक है, ओके। तो भाई इतना इज इक्वल टू कैपिटल ए हमने क्या अज्यूम किया है, कैपिटल ए इज साइन ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, ये तो रहा कैपिटल ए, माइनस ए बाई बी ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स dx। ओके, तो आप इसको इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही है, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, सो वी हैव इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स टू द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इससे डिवाइड होगा मतलब b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बाई बी इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स dx, इससे कटेगा। ठीक है, क्लियर होगा। अब हमें इसका तो इंटीग्रेशन आता ही आता है, तो अभी हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा टाइम लेकर के। ठीक है, ये मान लीजिए I1, तो ये देखो b और b कट गया, a अपॉन ये सिंपल रहेगा, तो a अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेट दिस वन इज I1। ठीक है, I1 मीन्स इतना, दैट इज 1 अपॉन a प्लस b कॉस ऑफ x। अब इसको हम सेपरेट से इंटीग्रेट करेंगे सेपरेटली। Okay, so I1 is equal to, here I1 is equal to integration of 1 upon a plus b cos of x dx. Okay, I1 is 1 upon a plus b sin x, sorry, a plus b cos x, and we know that in this type of integral we assume dx, that is 2 dt upon 1 plus t square, and a plus b cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, this is equal to 2 dt upon 1। तो हमारा इस टाइप के इंटीग्रल को आप क्या assume करते हो, tan x by 2 is equal to t, tan of x by 2 is equal to t, then dx is 2 dt upon 1 plus t square, and cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Please refer your notebook, this noted in last lectures. Okay, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। a कितना हुआ, a इंटू 2 बाहर लिख लिया मैंने, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और देखो a दोनों कटेगा, ये दोनों कैंसिल आउट, we have 2 into 1 upon a plus at square b minus bt square dt। ठीक है ना भाई, a plus at square b minus bt square, this is equal to twice of 1 upon a plus b और t square, sorry, a minus b, टी स्क्वायर अपने कॉमन निकाला तो a माइनस बी बचा, और प्लस a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आया dt, दिख रहा है ना। ओके, इसका प्रॉब्लम चलो सही है। तो उसके बाद क्या करना है, a प्लस बी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, टेकिंग t स्क्वायर एज ए कॉमन वी गेट a माइनस बी एंड कांस्टेंट टर्म a प्लस b, this one is equal to twice into 1 upon, देखो इसको पहले तो 1 मिनट 80 स्क्वायर, अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, we have to apply 1 upon x square plus a square, तो x square का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ t square a minus b outside of the integral, we get 1 upon t square plus a plus b upon a minus b, और हमें ये कैसा चाहिए,
इसको अंडर रूट में रखिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज टी स्क्वायर। तो 2/a-b फार्मूला इज 1/x square plus a square, that is 1/a under root of a plus b upon a minus b into tan inverse of x upon a, that is t upon under root of a plus b upon a minus b plus c। देखो a से कटेगा, b get 2 upon under root of a minus b under root a plus b, under root of a plus b a minus b, that is twice of under root of a square minus b square, और यहाँ बचेगा tan inverse of under root of a minus b upon a plus b t, t means tan of x by 2 plus c। तो ये रहा I1, इसको उठा के आपको यहाँ पे रखना है, तो देन यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर। ओके, और तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a plus b cos x to the whole square। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये आपको कितना बड़ा है थोड़ा सा मैनेज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ 1/a plus b cos x to the whole square dx is equal to b upon b square minus a square sin x upon a plus b cos x minus a by b square minus a square into I1, where I1 is 2 upon under root of a square minus b square into tan inverse of under root of a minus b upon a plus b into tan of x by 2 plus c। Okay, please make a note.